Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, my dear students, we are going to start a new chapter. Okay, the name of this chapter is Matter and its Property. Okay, this is the chapter number 9, and in this chapter, we are going to see what is the meaning of matter and how many types of matters are present on our planet Earth. Okay, and we all are going to see the properties of the matter. Okay, so come with me and let's start. See, when we complete this chapter, you are able to answer the question of this answer of this questions. Okay, but before I start this chapter, I want to discuss with you some things. See, all things around us are different to look and touch. Can you name these things? Okay, हम अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं, my dear students, वो अलग अलग होती हैं सारी. ठीक है, तो क्या आप आपके सामने ही 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो क्या आप इन चारों का नाम बता सकते हो? ओके, इफ यू कैन just write the name of this objects below the blank is given. Okay, now come with me and let's start a chapter. See, the first thing which we are going to see in this chapter is matter. Okay, the first thing which we are going to discuss in this chapter is matter. What is the meaning of matter? See, anything which occupies space and having its own mass is called as matter. This is a simple definition of mass. Here you can see anything that has a weight and occupies some space is called matter. This is a very simple definition of mass. Matter. Matter क्या होता है? कोई भी चीज जो आपका एक एरिया कर लेता है, मीन्स जो जिसका एक वेट होता है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है, उसे हम मैटर कहते हैं. लाइक यू कैन सी आई एम होल्डिंग दिस पेन. ओके, तो ये पेन क्या है? ये एक सॉलिड मैटर है. ठीक है, ये एक सॉलिड मैटर है. ठीक है, इसका एक शेप है. ठीक है, इसने एक एरिया कवर किया हुआ है. ठीक है, इसने इतना एरिया कवर किया हुआ, इट मीन्स क्या है? ये एक मैटर है. ठीक है, चलो, सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. मैटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं होता है. Matter means both living and non-living things. Okay, they all occupy space and weight, because I tell you that this is a matter. Okay, but this is a non-living thing. It's not a living thing. I'm a living thing, but it's a non-living thing. Okay, but both of us have some area occupied. Okay, and both of us have weight. Okay, and both of us carry some mass. That's why we both are matter. Okay, I'm living and this is non-living. Okay, now come with me and discuss what are the different types of states of matter. See, all the materials which is present on our planet Earth, they are present in 3 forms. Okay, they are either in solid form, or either in liquid form, or either in the gas form. Like the example of solid is our mountains. Okay, our mountains are present on our planet Earth is in the form of solid. Okay, while our oceans, our seas, our rivers, our lakes, they all are present in the form of liquid matter. Okay, and our atmosphere. Okay, in our atmosphere different types of gases are present. Okay, so this is the form of the third type of matter, gaseous matter. Okay, so on our planet Earth, our matter is present into 3 forms: solid form, liquid form, and gaseous form. Okay, now we are going to discuss all these forms of matter in detail. So the first type of matter, that is solid, we are going to discuss about solid. Solid क्या होता है? ठीक है, सॉलिड क्या है? सॉलिड का एक सर्टेन साइज होता है और एक शेप होता है. ठीक है, देखो, सॉलिड का मतलब क्या है? अ मैटर विच हैव अ सर्टेन शेप एंड सर्टेन size. Okay, this is called as solid matter. Okay, so the solid matter definition is a solid has a certain size and shape. It may be anything like a wood. Okay, like a human body. Okay, like this screen. Okay, and like this pen. All these have a different shape and size, but they have a different shape and size. Okay, so all the matter which is present in the form of solid, okay, they all have a fixed size and they all have a fixed shape. Okay, so the example which we can take in the solid matter form, that is our wood block. Okay, and other examples are like our computers, our desk, our floor,
etc and etc. They all are the example of solid. Here you can see this is the best example of solid, wood matter. Okay. Now what are the properties of our solid matter? Solid की क्या क्या properties होती हैं my dear students? Here we are going to see. See, the first property of solid is solid do not flow. Solid बहता नहीं है, ठीक है? That's why it named as solid. Solid ना बहता है ना ही उड़ता है, ठीक है? और ये क्यों नहीं बहता है और ना ही क्यों बहता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है सॉलिड के अंदर बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ठीक है? उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, उनके बीच में इतना भी स्पेस नहीं होता है कि वो मूव कर सके, ठीक है? इसीलिए वो एकदम फिक्स जगह पे खड़े होते हैं. दैट्स व्हाई सॉलिड डोंट मूव. इसीलिए इनका एक शेप होता है, ठीक है? जैसे ये वुड है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. जैसे इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस तरीके से प्रेजेंट है. देखो, ये देख रहे हो कितना ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है? तो ये इस तरीके से जब ये प्रेजेंट है, इट मीन्स अब देख रहे हो इनके बीच में तो डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए इनका एक डेफिनेट शेप होता है और इनका एक डेफिनेट साइज होता है, ठीक है? क्योंकि जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है? अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. आप सॉलिड को ये एकदम कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्यों आप इसलिए नहीं कर सकते हो? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर ऑलरेडी टचिंग ईच अदर, दे कैन नॉट बी स्क्वेश्ड एनी क्लोजर, ठीक है? अच्छा, पहले वाले में मैंने क्या बताया कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो दूसरे में आपसे कह रहा है कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि देखो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स इनके बीच में तो डिस्टेंस ही नहीं है. तो जब इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, देन हाउ यू आर गोइंग टू कंप्रेस अ सॉलिड मैटर? यू कांट कंप्रेस. इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है? सी, so the third property of solid is solid can be quite stronger because the particles are close, which make the forces holding each particles. ठीक है? देखो solid इसीलिए तो strong होता है, ठीक है? इसीलिए solid का जो मैटर है वो इसीलिए इतना strong होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा पैक्ड होते हैं क्लोजली, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही स्ट्रांग बना देते हैं, ठीक है? आप ये वुड का एग्जाम्पल ले लो. क्या इस वुड को आप कंप्रेस कर सकते हो? यू कांट कंप्रेस दिस. ओके, क्या आप इसको इसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है. यू कैन कट देम, ओके, यू कैन कट देम बट यू कांट कंप्रेस देम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ solid. Okay, now we are going to see the second type of our matter, that is liquid. Okay, so come with me, let's see what is the definition of liquid. देखो liquid क्या होता है? liquid की ना definite size होती है, ठीक है? वॉल्यूम होता है बट इसका कोई शेप नहीं होता है. Solid have a definite shape and size and definite volume also, but in liquid it has a definite size, definite volume, but it don't have any shape. Okay, the best example of our liquid is milk. ठीक है? मिल्क का कोई साइज नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, लेकिन मिल्क का क्या है, लिक्विड का क्या है, एक साइज होता है, एक वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम का मतलब क्या है? एरिया कवर करना, ठीक है? आप कहीं पे भी आप लिक्विड को डालोगे वो उस एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है? तो वो जितने एरिया को कवर कर रहा है, दैट कवर्ड एरिया इज नोन एज योर वॉल्यूम, ठीक है? देखो मिल्क का क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है? लिक्विड कैन फ्लो, be poured and spilled. See, liquid solid can't flow. Okay, solid can't poured, sorry, solid can be poured, okay, and solid can't be spilled, but liquid can be poured in any container. Okay, solids liquids can be poured and liquids can also be spilled. Okay, so the best example of liquid here you can see milk. Okay, now we are going to discuss the properties of our liquid. Now what are the main properties of our liquid? Here you can see liquids can flow. Okay, this is the most important property of liquid. Liquids can flow. The second property is liquid will not keep any shape. अच्छा, अब देखो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है. क्यों लिक्विड का शेप नहीं होता है? क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के साथ मूव करते रहते हैं, प्लेसेस ये चेंज करते रहते हैं. जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको ये इस तरीके से ड्रॉ करके मॉलिक्यूल्स दिखाए थे. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लिक्विड में, ठीक है, तो लिक्विड में जानते हो क्या होता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, ठीक है? ये देखो, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं.
तो इतना ज्यादा ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते ये सारे के सारे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसी की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस काफी होता है, ठीक है। तो उसी डिस्टेंस की वजह से दे कैन टेक एनी शेप, दे कैन मूव, ओके। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज द पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टूगेदर। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, लिक्विड में आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यू कांट कंप्रेस लिक्विड सिमिलरली लाइक लिक्विड। Why we can't compress liquid here, although there is a distance between the molecules, but see, there is a distance between, but they are not very far from each other, means there is a certain distance between two molecules, okay. That's why you can't compress liquid, okay, because here molecules are also present in very close distance, okay. So the third property of our liquid is liquid can't be compressed, okay. So this is all about our liquid. Now we are going to see about the third property of gas, matter, and the third property of matter is our gases. Gases क्या होते हैं? Solid का क्या है? Size होता है, shape होता है, volume होता है. Liquid का shape होता है, volume होता है, but they don't have a liquid की size होती है, volume होती है, but they don't have a shape. Okay, but in the case of gases have no shape, no size of its own. ठीक है, जैसे सॉलिड का अपना शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों है, ठीक है। लिक्विड की अपनी साइज होती है, अपनी वॉल्यूम होती है, ठीक है, बस उसका शेप नहीं होता है। बट गैस का क्या होता है? गैस का ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है, इसीलिए तो गैसेस को हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। देखो, गैसेस के इवन कोई कलर भी नहीं होते हैं, ठीक है, गैसेस का कोई कलर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गैस तो हमारे हर तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, गैस तो हमारे हर तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। हम गैस को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? जब हवा चलती है, तो जब हवा चलती है हम कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत गर्म हवा चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? वो गैसेस को हम फील कर सकते हैं उस टाइम, ठीक है। और गैस क्या होता है? ठीक है, गैस क्या है? एयर का मिक्सचर होता है, ठीक है। The simple definition of gas is the mixture of the air. Here you can see these are the gases, and here the molecules are arranged like this. One molecule is present here, then another is here, then another is here, then another is here. That's why there is a very much difference between them. Okay, इनके molecules के बीच में बहुत ज्यादा difference होता है, इसीलिए बहुत ही easily move कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। Now come with me, let's see the properties of gases. What are the properties of gases? So the first property of gases is gases can flow like liquid. Okay? अच्छा, ये गैसेस क्यों फ्लो कर सकती हैं? मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया, वो इसलिए फ्लो कर सकती हैं क्योंकि जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो। अच्छा, अब गैसेस क्या होते हैं? गैसेस को आप किसी कंटेनर में भर सकते हो, ठीक है, बट आप उसको देख नहीं सकते हो, लाइक योर ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके। ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर का एक सॉलिड सब्सटेंस है, बट उसके अंदर क्या होता है हमें दिखेगा नहीं, बट वो गैस भरा होता है, ठीक है। अच्छा, मूव वेरी फास्ट एंड देयर नो फोर्स टू स्टॉप देम फ्लाइंग अपार्ट, ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई फोर्स नहीं रोक सकता। नो फोर्सेस कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ गैसेस, ओके। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। अच्छा देखो, सॉलिड एंड लिक्विड कांट कंप्रेस्ड, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। And why gases can compressed? Because the distance between the particles or molecules are very much, okay, that's why they can squeezed together, okay. Here you can see the distance between the molecules of the gases is very much, that's why they can squeezed, okay. Now the fourth property of gases is gases spring back when you stop compressing, okay. आपने दबाया उसको, ठीक है, और गैसेस क्या होगा? दब भी गए, बट जैसे आप छोड़ोगे ना वो गैसेस वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। So these are all the properties of gases. Now we are going to see phases change. See, there can be phase change between solid, liquid and gas. Once a liquid can convert it into gas, and once a gas can convert it into solid. Here we are going to see, okay. See, मैटर को हम किसी भी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। मेल्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग? इन मेल्टिंग solid substance is converted into liquid matter, okay. Melting means through the process of melting a solid matter is converted into liquid matter, okay. Melting का मतलब ये होता है ना, पिघलाना। किस चीज को पिघलाओगे? सॉलिड, कोई आइस को पिघला रहे हो,
आइस का है, एक सॉलिड चीज है, ठीक है. व्हेन यू मेल्ट आइस, once a solid, now it converted into liquid. ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जो चीज कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग कहते हैं. बॉइलिंग, in boiling liquid converted into gas. Okay, through boiling method we convert liquid matter in gas matter. Here you can see liquid to gas. Condensing, what is the meaning of condensing? Here gas changes to a liquid. Okay, with the help of condensation we can convert the gas, means with the help of condensation we can convert the gas matter into the liquid matter. Okay, now freezing, in freezing liquid is changed into solid form. Okay, in freezing we convert the liquid object into solid object. Okay, so remember this terms. Okay, now my dear student, we are going to see the properties of our matter. Okay, our properties of matter is, see, we have three different types of matter: solid, liquid and gas, and each of them have different types of properties, but combinedly they have two properties: physical property and chemical property. Let's have a look here. What is the meaning of physical property? It is divided into two properties, physical and chemical. Now what is the meaning of physical property? Okay, see, describe the object. Okay, when you can describe any object, it is means physical property. ओके जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बोर्ड है इसका शेप रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बता रही हूं इस बोर्ड का. ठीक है, इन फिजिकल प्रॉपर्टी we can discuss about the color, about the shape, about the size, about all thing about a solid thing. Okay, देखो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो चेंज करके भी, बिना चेंज किए भी. ठीक है, देखो दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर. ओके, एग्जाम्पल है कलर, ऑर्डर, साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है हम जब उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं, लाइक वो किस कलर का है, वो किस शेप का है, वो किस साइज का है, ठीक है, और वो कितना डेंसिटी उसका है, तो जब हम ये सारी चीजें बता पाते हैं ना, इसका क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, बट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी? लेट्स हैव अ लुक. केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्क्राइब्स अ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी. सी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? आपको मैटर का स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में यू डोंट नीड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द मैटर. Okay, without changing means without changing you can tell about the color, the shape, the size, the density, etc and etc about that object. But in chemical properties it is totally changed. Okay, when we have to define any property, means when we have to define the chemical property of any substance, then we need to change that object. मीन्स फिजिकल में आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो है आप बता सकते हो. जैसे ये है, मैं इसको बता सकती हूँ ये इसका शेप है, ये ब्लैक कलर का है. ठीक है, लेकिन अगर मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी होंगी किसी भी चीज की, देन वी ऑल हैव टू चेंज दैट मैटर. ओके, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में उस मैटर को चेंज करना होता है और वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है, फिजिकल में हम कोई चेंजेस नहीं करते, इसीलिए वी गेट नो न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी चेंज एंड वी गॉट अ न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन इतनी इजी नहीं होती है चेंज करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लेमेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी. ठीक है, रिएक्शन हमें पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि इस एसिड को उससे आप कराओगे इंटरैक्ट तो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो चलो द चेंजेस दैट टेक प्लेस सब्सटेंस में कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस. तो जो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं ये भी दो क्लासेस में बटी हुई हैं. वो कौन कौन सी हैं? पहला तो है आपका फिजिकल चेंज. ये फिजिकल चेंज क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक. चेंज दैट अफेक्ट्स वन और मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. फिजिकल चेंज में किसी भी मैटर का, ठीक है, किसी भी मैटर की सिर्फ एक या दो चीजें चेंज होती हैं. ठीक है, फिजिकल में किसी भी ऑब्जेक्ट की एक या दो ही चीजें चेंज होती हैं. ठीक है, तो अगर जब एक या दो ही चीजें चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है? फिजिकल चेंज के बाद वी कांट गेट अ न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेक फेस चेंज, क्रशिंग अ कैन. ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. व्हेन यू ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम एनी कैन. कैन इज मेड अप ऑफ टिन. ओके. हाँ. तो पहले क्या होता है, पहले कैन का जो शेप होता है वो कुछ इस शेप में होता है. ठीक है. पहले कैन का शेप ऐसे होता है, आपने ड्रिंक पी लिया उसमें से, एंड देन यू थ्रो दैट कैन. ओके. एंड यू क्रश द कैन. ठीक है. आपने क्या किया, कैन को ड्रिंक पीकर आपने फेंक दिया. आप जब फेंकते हो तो आप उस कैन को क्रश भी कर देते हो. तो व्हेन यू क्रश दैट कैन, यू कैन सी उसका तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. पहले वो ऐसे था, क्रश होने के बाद वो फ्लैट हो जाता है. ठीक है. आपने देखा, तो वो आपका फिजिकल चेंज है. तो फिजिकल चेंज में क्या आपको कोई नया कलर मिला देखने को? नहीं, बट आपको नया शेप मिला देखने को. पहले कैन का शेप ऐसा था, अब क्रश होने के बाद वो बहुत ही अनइवन हो गया है. ठीक है. तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस में आपको कोई एक नया ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है. वो पहले भी कैन था, वो अभी भी कैन है, बट डिफरेंस इतना है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. पहले वो एक होल बॉडी था, अब वो क्रश्ड हो चुका है. ठीक है. तो फिजिकल में हमें कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, बस प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी केमिकल चेंजेस. अभी केमिकल चेंजेस क्या होता है? अच्छा, फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल आप ये भी देख लीजिए. इट्स अ सी सॉल्ट एंड सॉल्ट. हमें सी सॉल्ट कहां से मिलता है? समंदर से. ठीक है. आपने क्या किया, आपने समंदर से सॉल्ट निकाल लिया. ठीक है. तो क्या सी में कोई चेंजेस आया? हाँ. When you take out the salt from the ocean water, can you see any changes in ocean water? No, we can't see any changes in ocean water. Once a ocean, now also a ocean. Okay. तो ये physical changes हैं. But now what about chemical changes? What is the meaning of chemical changes? See, chemical changes occur when one or more substances are changed into entirely new substance with different properties. Chemical changes में क्या होते हैं? Chemical changes में जब दो objects मिलके वो तीसरे को create करते हैं. ठीक है. Chemical properties only when a chemical changes might occur. Example, burning, rusting, photosynthesis. ठीक है. केमिकल चेंजेस होने के लिए हमेशा हमें दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है. वो दो ऑब्जेक्ट मिलके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है. और वो जो नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, आप उसको फिर से उसको पुराना वाला शेप नहीं दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. हियर यू कैन सी बर्निंग. ठीक है. आप एक पेपर को बर्न कर दो. ठीक है. आप एक पेपर को बर्न कर दो. तो जब आप पेपर को बर्न करोगे, आपको एशेस मिलेंगे. ठीक है. तो क्या आप उस एशेस से पेपर बना सकते हो दोबारा से? नहीं बना सकते. तो हेयर कौन सा टाइप का चेंज आया है? केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज. बिकॉज इन फिजिकल चेंज यू कैन कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट into the older form. Okay. But in chemical change you can't change. Okay. Once a paper, now converted into the ashes, and from ashes we can't create paper. ठीक है. तो समझ में आया फिजिकल और केमिकल में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब क्या डिफरेंस होते हैं? समझ में आया? So my dear student, this is all about in this chapter. Okay. Now come with me and let's have a very quick recap about this chapter. What the things which we learned through this chapter. So the first thing which we learned through this chapter, the definition of matter. ठीक है. मैटर का क्या है? Anything that occupies mass and volume is called as matter. Matter always exists in three forms: solid, liquid and gas. Okay. Now these phases of matter can change from one to another. Okay. Volume is a shape. This is a definition of volume. What is the meaning of volume? Volume is shape a substance or shape occupies or contains. And matter has always two properties: physical property and chemical property. Okay. So I hope, my dear student, you got a very good understanding of this chapter. Okay. Now go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.